everyone, and warm welcome to all of you. Welcome back to weekly webinar cum training sessions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome to all attendees here. So thank you so much for joining us today's session. I am Sampada representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about inventory management in Tally Prime. So before moving ahead to today's topic, so take a small introductions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into sales, software sales, services, solutions, implementations, and development. So first we deal with Tally Prime, the best accounting software. Second, SAP Business One, the business management software connect the streamline company's process. Third, Bitrix 24, all-in-one solutions of CRM projects and collaborations tools. Fourth one is Great HR. It's a HRMS software and payroll solutions. So now speakers are available here. So Tejasri and Tarun, are you here? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Welcome and thank you. And go ahead, Tejasri, start your presentation. Yes, ma'am. Thank you. Hello everyone, myself Tejasri and I am here to represent the webinar on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Here is our Rajlakshmi family, welcomes to all of you. So today we are going to discuss about very useful topic, that is inventory management in Tally Prime. Moving on to the first slide. Yeah, that is inventory management. Tally Prime supports tracking inventory in your business from purchase order to sales. Stock tracking can be across godowns or locations or different stages of processing. Inventory tracking covers stock exchanges due to purchase and sale processes, delivery or receipts as samples, and movements across godowns, all adjustment entries including those caused by physical verification and so on. टैली प्राइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग में आपको हेल्प करता है फ्रॉम परचेस ऑर्डर टू सेल्स के प्रोसेस तक। आप डिफरेंट स्टेजेस पे स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो डिफरेंट गोडाउन्स और लोकेशंस के साथ। इन्वेंट्री ट्रैकिंग आपके परचेस और सेल्स होने के बाद स्टॉक में जो भी चेंजेस होते हैं या फिर गोडाउन्स के जो भी मूवमेंट्स होते हैं और जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन के एडजस्टमेंट एंट्रीज होते हैं उसको कवर करता है। नेक्स्ट स्लाइड। स्टॉक समरी. The stock summary is a statement of the stock in hand on a particular date and it updates the stock record in real time. Stock summary provides information on stock groups and shows the quantity details, rate, and closing value of stock items under each group. Stock summary एक statement है जो stock in hand और real time stock को record को show करता है, वो भी particular date wise. स्टॉक समरी आपको स्टॉक ग्रुप्स, उसके क्वांटिटी, वैल्यू, रेट और पर्टिकुलर स्टॉक आइटम वाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्लाइड। मूवमेंट एनालिसिस. Movement analysis shows the analysis of only those inventory transactions that are integrated with accounts, that is, inventories that are also recorded in the books of accounts. Inventory vouchers that affects the stock only in quantitative terms are not considered. The movement analysis report is used for comparative studies. They give an insight into the flow characteristics of stock in an organization. It also helps in finding out the slow-moving items that cause blockages in the flow of the working capital of the organization. Movement analysis में हमें जो inventory accounts terms में यूज़ हो रही है उसका ही रिपोर्ट शो करता है। ये मेनली आपको कौन से स्टॉक आइटम बिजनेस में ज़्यादा मूव हो रहे या फिर ज़्यादा सेल परचेस हो रहे या फिर सबसे कम मूव हो रहे, ये फाइंड करने में हेल्प करता है, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल का फ्लो पता चले। नेक्स्ट स्लाइड। स्टॉक क्यूरी. The stock query reports provides complete information about a particular stock item. Thus, details include alive, part number, stock group, stock category, available closing quantity and balance, cost price,
standard selling price, costing method, and market valuation method, and so on. So that's it from my side. Thank you everyone. It's over to you, Tarun, for live demo. Yes, sure. Yes. So good evening everyone. My name is Tarun and आज का जो सेशन है वो है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जो जैसे कि जो रिपोर्टिंग सिस्टम है अपना इन्वेंट्री का, तो उसको किस सिनेरियो में हम देख सकते हैं और किस तरीके से उसको व्यू कर सकते हैं एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेस पे हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे स्टॉक समरी अगर हम देखें तो स्टॉक समरी के अंदर इस टाइप से आपका ओपन होगा, जिसमें पूरे स्टॉक आइटम्स आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं अपने, और बोल्ड लेटर्स में जो आपको देखने मिल रहा है ये बोल्ड कलर्स में, ये स्टॉक ग्रुप होते हैं, ठीक है, और ये आपके स्टॉक आइटम्स है। देन राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको ये कुछ शॉर्टकट कीज दी हुई हैं और कुछ ऑप्शंस जो है रिपोर्ट पे अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर F4 वाला ऑप्शन दिया है स्टॉक ग्रुप। तो अगर हम स्टॉक ग्रुप के बेस पे देखना चाहें, कुछ पर्टिकुलर अगर स्टॉक ग्रुप लगाना है आपको, तो वो स्टॉक ग्रुप डाल के भी आप निकाल सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल के हिसाब, यहाँ पे ये रॉ मटेरियल, तो मैंने रॉ मटेरियल किया तो रॉ मटेरियल के अंदर के जितने आइटम्स है वो सारे आ गए, ठीक है। तो ऐसे फिल्टर लगा के भी हम कर सकते हैं। तो ये एक तरह से फिल्टर ही आप देख सकते हैं जो कि स्टॉक ग्रुप के नाम से। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन F5 में जो है अपना ये स्टॉक आइटम वाइज है। अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ ये, तो ये स्क्रीन पे जितने भी आइटम्स है आइटम वाइज दिखाएगा आपको, यानी कि जो ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम्स है उनको भी इन्होंने मेन स्क्रीन पे ला दिया है, ठीक है। तो ये आइटम वाइज हो जाता है। अब उसी में आप देखेंगे F5 में तो ये स्टॉक ग्रुप वाइज चेंज हो गया, मतलब ठीक है। तो ये एक व्यू है अपना। फिर यहाँ पे अगर मंथली अपने को देखना है तो मंथली भी देख सकते हैं, ठीक है। पहले F12 से हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अगर इनेबल करें, मैंने F12 किया यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस अपने को दिए हुए हैं, जैसे क्वांटिटी का है, अल्टरनेट यूनिट है। अल्टरनेट यूनिट जैसे हम अल्टरनेट यूनिट अगर यूज़ करते हैं आइटम्स में तो इस ऑप्शन को इनेबल रख सकते हैं, राइट, तो वो भी विजिबल हो जाएंगे अपने को। शो ओपनिंग बैलेंस है, शो इनवर्ड है, आउटवर्ड है, इसको मैंने यस कर लिया। अगर आप मार्जिन देखना चाहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो या आउटवर्ड के बेस पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो कंजम्पशन। कंजम्पशन भी अगर आपको देखना है कि कितना आपने आइटम जो है आपका इन्वेंट्री कितना आपने कंज्यूम किया है और कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, तो उसके बेस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देन अगर वैल्यू के हिसाब से देखना है आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और ग्रॉस वैल्यू कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ इन्वेंट्री है आपका, तो इन्वेंट्री में ऐसे भी आइटम्स होंगे जो निल हो गए होंगे, यानी कि आपने सपोज करिए 10 क्वांटिटी परचेज किया और 10 क्वांटिटी ही आपने आउटवर्ड कर दिया, तो वो क्वांटिटी तो निल हो गई उसकी। तो कुछ ऐसे भी आइटम होंगे जो निल हो गए होंगे लेकिन वो रिपोर्ट पे दिखते नहीं है, तो वो इन्वेंट्री मेन स्क्रीन पर नहीं होती। उसके लिए F12 में ऑप्शन दिया है यहाँ पर शो स्टॉक आइटम्स विद जीरो क्वांटिटी और बैलेंस। इस ऑप्शन को भी आप यस रख सकते हैं अगर आपको वो आइटम्स देखने हैं जिनका क्वांटिटी जीरो है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर टाइप ऑफ ग्रुपिंग पूछा है, तो इसको आप आइटम वाइज भी रख सकते हैं, स्टॉक ग्रुप भी रख सकते हैं, वही वाला ऑप्शन है जो F5 से बताया था मैंने। फिर यहाँ पर है डिटेल फॉर्मेट। अगर डिटेल में देखना है डिटेल में देख सकते हैं, और अगर कंडेंस देखना है तो कंडेंस भी देख सकते हैं। फिर यहाँ डिस्प्ले नेम है, इसमें आप नेम ऑनली रखिए, और इसमें आपका चॉइस है अगर कुछ अलाइज वगैरह अगर आपने डाला हुआ है तो एलियास वगैरह के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। फिर बेस करेंसी है, इसे मैं वही रख रहा हूँ। और सॉर्टिंग मेथड भी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, अगर आपको कुछ अल्फ़ाबेटिक यूज़ करना है, कुछ अमाउंट के अकॉर्डिंग लगाना है, या असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना है क्वांटिटी के बेस पे, तो वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो F12 करने के बाद आप अपने को इस तरीके से रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पर ओपनिंग आ रहा है आइटम का, जिन आइटम्स में ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ है तो उसके अंदर ओपनिंग आ रहा है, ठीक है। फिर आता है इनवर्ड का कॉलम, आउटवर्ड का कॉलम, देन आ जाएगा अपना क्लोजिंग।
ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टॉक आइटम में देख रहे हैं जिसमें आउटवर्ड हुआ है, उसके अंदर ये यहाँ पर अपने को क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, कंजम्पशन, ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट का परसेंटेज, तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, तो F12 से आप अपने इस ऑप्शन को यस करके और ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर जैसे अगर आप जाएंगे तो आपको अंदर में मंथली जो व्यू होगा वो भी देखने मिलेगा। और जैसे इसमें जाते हैं, इसमें तो सिर्फ इनवर्ड ही है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में भी ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास F6 वाला। F6 से भी हम डायरेक्टली अगर इसको मंथली में करें तो मंथली में ही आ जाएगी रिपोर्ट वही रहेगी। यहाँ पर इसने ये परसेंटेज पूरा ऐसे टोटल करके दिखा दिया, और मई और जून 2 महीने का पीरियड है तो 2 महीने की एंट्री दिखा रहा है इस तरीके से कि इतना आपका वैल्यू था, ग्रॉस वैल्यू इतना है, कंजम्पशन आपने इतना किया है, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका इतना हुआ है, और परसेंटेज जो है प्रॉफिट का वो आपको दिखा रहा है। इसके अंदर अगर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद फिर वो इन्वेंट्री वाली रिपोर्ट दिखाएगा आपको, दोनों में सेम चीज। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, जैसे अगर आपने प्रॉफिट इनेबल कर रखा है तो वो F7 वाला ऑप्शन जो है वो हाइड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले वहाँ पर लिखा हुआ था शो प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट भी आप अपने अकॉर्डिंग यस नो करके हाइड कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने आइटम जो है बनाया हुआ आपने, तो उस स्टॉक आइटम को आप किस तरीके से आप वैल्यूएट करते हैं तो वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि सभी लोग जनरली सब लोग एवरेज या डिफ़ॉल्ट के बेस पे चलते हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जैसे जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, अगर फीफो के अकॉर्डिंग चलना है तो फीफो के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका बेसिस ऑफ वैल्यूज का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ 3 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वही आपका वैल्यूएशन है, जो ऑप्शन बाहर दिया हुआ था वही ऑप्शन यहाँ पे भी है, तो वही चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे गोडाउन वाला भी एक ऑप्शन आता है कि टाइप ऑफ वैल्यू। गोडाउन टाइप में आप क्या लेना है, अगर जैसे आपने गोडाउन्स बना रखे हैं तो हर टाइप के अगर गोडाउन है, मतलब मल्टीपल गोडाउन है, तो आप ऑल टाइप भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, वैसे ये प्रायोरिटी पे रहता है क्या है, आवर स्टॉक विद अस एंड थर्ड पार्टी। मतलब कि हमारा स्टॉक अगर हमने इंटर गोडाउन ट्रांसफर किया है तो वो वाली एंट्रीज भी दिखाएगा, और थर्ड पार्टी का मतलब है कि अगर हमने सामने किसी पार्टी को सेल किया है तो वो भी दिखाएगा। ठीक है, तो जनरली ये इस पे होता है बाय डिफॉल्ट। बाकी वो आपका चॉइस है, अगर आप फिल्टर करके देखना चाहते हैं तो एक तरह से फिल्टर हुआ, आप अपनी पर्टिकुलर एंट्रीज को इन 4-5 स्टेजेस के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन आता है स्केल फैक्टर का। तो स्केल फैक्टर में वैसे ये जितना अमाउंट होता है वो अमाउंट के बेस पे दिखाता है। ठीक है, जितनी वैल्यू होती है। अगर आपको इसको चेंज करके देखना है, जैसे हंड्रेड्स में या लैक्स में, तो वो उसके हिसाब से भी दिखा सकता है। अभी देखिए टोटल फिगर कितनी आ रही है आपकी, ये क्लोजिंग स्टॉक अगर आप नीचे की तरफ देखें तो 25 लाख करके आ रहा है ना ये। तो इस वैल्यू को अगर हम ऐसे वैल्यूएशन में इसमें जाके स्केल फैक्टर को अगर हम चेंज करते हैं, अगर हम हंड्रेड्स में करते हैं या लाख में करते हैं तो वो लाख में भी दिखा देगा आपको। ये देखिए, ये 25.77, तो 25,77,000, तो ये इस हिसाब से भी दिखा रहा है आपको। तो कंट्रोल बी बेसिस ऑफ वैल्यू में जाके इसको हम वापस से कर देते हैं डिफ़ॉल्ट पे। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है प्राइस टू प्राइस, तो जितना प्राइस है, जितना वैल्यू है, उसके हिसाब से। ठीक है, फिर आता है ऑप्शन चेंज व्यू का। चेंज व्यू कंट्रोल एच अगर आप करें तो चेंज व्यू में आपको लिस्ट ऑफ व्यूज मिलते हैं। अगर आपने कोई सेव व्यू अगर बनाया हुआ है, सेव व्यू का मतलब आपने जैसे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव किया है F12 का, या बेसिस ऑफ वैल्यू या कोई फिल्टर आपने लगाया और उस चीज़ को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव व्यू के थ्रू सेव कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, तो वो व्यू भी आपका यहाँ पर सेव हो जाता है। एक तो वो हो गया अपना, और सेकेंड चीज़ रिलेटेड रिपोर्ट वाला ऑप्शन भी इसी में ही है।
तो रिलेटेड रिपोर्ट से आप किसी अदर रिपोर्ट में मूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मंथली समरी, मूवमेंट एनालिसिस या एजिंग एनालिसिस। तो डायरेक्टली हम यहाँ से जा सकते हैं, तो डायरेक्टली वो उस रिपोर्ट पे ले आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टॉक ग्रुप एनालिसिस खोल दिया इसने मूवमेंट एनालिसिस के अंदर, तो वो चीज़ है। तो ऐसे आपको बैक करके गेटवे ऑफ टैली पे जाके वहाँ से जाने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन रिपोर्ट अगर आप देखें तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में आपका ये आ जाता है, जैसे कि लिस्ट ऑफ कुछ एक्सेप्शन रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे नेगेटिव स्टॉक आइटम्स। हमें ऐसा होता है ना कि जितने भी हमारे आइटम है और नेगेटिव क्वांटिटी में, तो वो हमें देखते हैं। तो वो देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से आप नेगेटिव स्टॉक आइटम पे एंटर कर लेंगे, तो डायरेक्टली आपको वो आइटम्स देखने मिल जाएंगे जो जिनकी क्वांटिटी नेगेटिव में है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑप्शंस पे इस पर दिया हुआ है, तो चीज़ें आपको फिल्टर करना है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन अपना जो जैसे मैंने बताया कि सेव व्यू, हम कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करने के लिए करते हैं, तो ये सेव व्यू वाला ऑप्शन उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अप्लाई फिल्टर्स वगैरह भी हैं, अगर कॉलम ऐड करके अगर हम पीरियड वाइज भी अगर कंपेयर करें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे होता है ना क्वार्टरली अगर हम करते हैं तो उस तरीके से। जैसे सपोज करिए यहाँ पे ऑल्ट सी किया मैंने, अभी मई जून का डाटा दिखा रहा है वो, अगर सपोज करिए मैं जून डाल देता हूँ यहाँ पर और बेस करेंसी को यही रखता हूँ, और स्टॉक ग्रुप में प्राइमरी रहने देते हैं, तो ये अप्रैल से जून इस तक का पीरियड आपको यहाँ पर दिखा रहा है। वैसे दो महीने का ही है, अगर अलग अलग कॉलम डाल के करते हैं तो अलग अलग भी आप बना सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री है आपका जो स्टॉक समरी है। सेकेंड चीज़, अगर आप इसमें जैसे इन्वेंट्री रिपोर्ट में जाकर के अगर आप देखें इन्वेंट्री बुक्स, जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर अपने को समरी मिलता है। समरी मतलब आप स्टॉक आइटम के बेस पे देख सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर आइटम उसकी एक्टिविटी देखनी है तो उस पर एंटर करेंगे और वहाँ से आपको उसका इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग सब मिल जाएगा मंथ वाइज। ठीक है, तो वो आइटम के बेस पे देख सकते हैं समरी, बैच के बेस पे देख सकते हैं अगर आपने बैच बना रखे हैं तो। ठीक है, कोई भी स्टॉक आइटम आप ले लेंगे या लिस्ट में आ रहे हैं जितने, तो वो आपको बैचेस दिखा देगा कि उस पर्टिकुलर आइटम के कितने बैचेस हैं जो अवेलेबल हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग भी आता है बेसिकली यहाँ पर कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है उसका, उसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो बैच के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। देन लोकेशन आता है अपना, लोकेशन मतलब कि आपने जैसे गोडाउन बना रखे हैं तो गोडाउन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने इस पर एंटर किया तो ये इसके अंदर रॉ मटेरियल आ गया अपने, और रॉ मटेरियल में एंटर करूँगा तो इसके अंदर अपना ये आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा। इस ग्रुप के अंदर आया तो मैं आइटम्स आ गए यहाँ पर काफ़ी सारे अपने, इसमें दिखा रहा है कि एक ही आइटम है जिसमें एंट्री पास हुई है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ मूवमेंट एनालिसिस में अगर हम आए, जो कि आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टॉक क्वेरी का। तो स्टॉक क्वेरी का रिपोर्ट क्या होता है, जैसे कि कोई भी आइटम होता है ना, तो उस आइटम की प्रीवियस और करंट एक्टिविटी आपको दिखा देगा। जैसे ये आइटम है बट इसके अंदर सेल परचेस नहीं हुआ है, सेल्स वाला कोई आइटम ले लेते हैं। ये देखिए जैसे ये आइटम है, मैंने शर्ट लिया तो उसके हिसाब से उस पर जैसे मैं आइटम है उस पर मैंने एंटर किया, तो सबसे पहले स्टॉक क्वेरी की रिपोर्ट पे ना उस आइटम की डिटेल्स दिखाएगा आपको, जैसे वो नेम की क्या ग्रुप है उसका वो दिखा देगा, क्लोजिंग बैलेंस अगर कुछ है तो वो आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा उसका। ठीक है, देन यहाँ पर कॉस्टिंग मेथड आ जाएगा। कॉस्टिंग मेथड आपने देखा होगा आइटम क्रिएट करते हैं तभी वहाँ पर आता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट एवरेज कॉस्ट होता है, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। देन आता है अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको मालूम होगा जब हम उसे बोलते हैं जो आपने
आइटम को परचेज किया है, ठीक है, तो वो आपकी परचेजिंग कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको बोल सकते हैं। देन यहाँ पर अपना पार्ट नंबर आएगा, पार्ट नंबर कुछ डाला हुआ नहीं है इसलिए ब्लैंक है, कैटेगरी डाला नहीं है तो वो नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर क्लोजिंग वैल्यू आ रही है, इसके बाद स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, तो ये सेलिंग प्राइस है अपना, और मार्केट वैल्यूएशन मेथड अपना एवरेज प्राइस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस आइटम का कोई भी इनवर्ड होता, इनवर्ड मतलब कि परचेज, तो वो वहाँ लेफ्ट साइड में आ जाता, जैसे कि लिखा हो ना लास्ट परचेज्ड ऑन, तो वहाँ पर ऐसा डेट आता, और वहाँ पर जैसे राइट हैंड साइड में अपने को ये एंट्रीज मिल रही है, ऐसी वहाँ पर भी एंट्रीज आती है। तो अभी रिसेंटली कोई भी एंट्री नहीं हुई है इसकी, ठीक है, तो वहाँ नहीं दिखा रहा। ओनली सेल्स हुई है तो ओनली सेल्स ही यहाँ पर दिखा रहा है इस आइटम की, और किस किस पार्टी को हुआ है, किस डेट पे हुआ है, कितनी क्वांटिटी, कितनी रेट से गया है, कितनी अमाउंट हुई है, ये सारी एक्टिविटी आपको सिंगल स्क्रीन पे मिल जाएगी, जिसे हम स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस रिपोर्ट पे भी राइट हैंड साइड में ऑप्शन अपने को दिया हुआ है बेसिस ऑफ वैल्यू का और एक्सेप्शन का, ठीक है। एक्सेप्शन तो बेसिकली ब्लैंक है, यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यू चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको नेट रेट मिल जाएगा, ठीक है, आइटम का। और इसके अंदर जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है मूवमेंट एनालिसिस, तो मूवमेंट एनालिसिस के अंदर क्या आता है, अपना नाम से आपको पता लग रहा होगा, ये मूवमेंट बताता है किसी भी आइटम का, कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, जैसे हम तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि आइटम की मूवमेंट जो है वो ये रिकॉर्ड करता है, सेल्स, परचेज, या अगर हमने गोडाउन ट्रांसफ़र किया है, जैसे हम अपनी ही किसी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें भी आपकी इसमें रिकॉर्ड होगी, एंट्रीज। तो ये इसके कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि स्टॉक ग्रुप के बेस पे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, जो कोई भी ग्रुप होगा। जैसे मैंने रॉ मटेरियल लिखा, तो रॉ मटेरियल में पीरियड अगर मैं डाल दूँ यहाँ पर, ठीक है, अभी इसके अंदर कोई एक्टिविटी हुई नहीं है इसलिए इनवर्ड आउटवर्ड दिखा नहीं रहा है, ठीक है। बाकी जिसके अंदर आपका एक्टिविटी होगा उसमें यहाँ पर एंट्री आएगी कि इतना इनवर्ड हुआ है, इतना आउटवर्ड हुआ है, ठीक है। सेकेंड चीज़ यहाँ स्टॉक कैटेगरी के बेस पे देख सकते हैं, कैटेगरी जैसे हमने प्राइमरी डाला है, कैटेगरी कुछ बनाया ही नहीं है, तो इसलिए प्राइमरी ही है सिर्फ एक, अगर आपने बनाया होगा तो मल्टीपल आएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर इस टाइप से, या जैसे एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद मूवमेंट आउटवर्ड, सिर्फ आउटवर्ड था यहाँ पे इस कॉलम में, तो इसलिए ये सिर्फ आउटवर्ड ही दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर पार्टी का नाम होता तो पार्टी का नाम भी आता, बट हमने कैश किया है तो कैश के नाम से आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगा और रेट आ जाएगा, देन इफेक्टिव रेट भी आ जाता है। इफेक्टिव रेट बेसिकली वही चीज़ है जितने रेट से आपने सेल किया है। फिर इसके बाद स्टॉक आइटम एनालिसिस है, कि सिंपल ही है कि किसी भी आइटम के बेस पे आप देख सकते हैं उसको। जितना भी जैसे ये आइटम लिया हमने, तो इसके अंदर दो पार्टी दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके सामने उसका आउटवर्ड दिखा रहा है, तो ये मूवमेंट रिकॉर्ड करता है। तो ऐसे ही ग्रुप वाइज भी आप देख सकते हैं इसको, ग्रुप के अंदर जाएंगे तो ग्रुप के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और लेजर के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पर्टिकुलर लेजर के बेस पे भी देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्टी को कितना गया हुआ, कितना इनवर्ड, कितना आउटवर्ड, वो चीज़ें भी देख सकते हैं। देन आता है ट्रांसफर एनालिसिस। ट्रांसफर एनालिसिस वही होता है अपना जो हम इंटर गोडाउन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये अपना ये तीन चीज़ों में होगा, मैन्युफैक्चरिंग में होगा, मैन्युफैक्चरिंग जनरल में होगा, और स्टॉक जनरल हो गया, ये वाउचर टाइप्स है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई एंट्री है नहीं इसलिए वो ब्लैंक दिखा रहा है। So that's it from my side. Thank you. Yeah, thank you, Tarun and Tejasri, for your time. So we have one special offer for Tally Prime users for limited period. Scenario 1 with expiry TSS. If you are currently using Tally ERP 9, so we recommend to renew your TSS and migration to the latest version, that is Tally Prime. So by doing so, you will receive the additional 4 months of subscriptions free.
which will be reflect in your system within a 15 days. And scenario 2, that is active TSS. If you are using a Tally Prime ERP 9 with your valid TSS, we recommended migration with the latest version, that is Tally Prime. And for doing the same, you will receive the additional 4 months the subscription free, which will be reflected in your system within a 15 days. Okay, so this now we are going to wind up this session. So this session will be uploaded in our YouTube channel. So be connected in our YouTube channels and be connected to our key account managers, and any support you will connect with our support center and support numbers. So now we are wind up this session. Thank you. See you in the next webinar. Thank you so much.